Hello and welcome. This is Muhammad Mudassir Alam, Public Relation Officer of Central University of South Bihar. This is a central university situated in the state of Bihar, in Gaya district, about 15 kilometers away from Gaya railway station. Established in the year 2009 as per the Act of the Parliament, this university is making significant contribution towards the academia. This university has got a A++ grade from NAC, Category 1 status from UGC. It has got a place, secured a place in the NIRF ranking. There are other things like a PERS grant from DST and other grants, and it is a good university for pursuing research as well as higher education. Sustainability is a major challenge before the world, and water is very much important for living beings to sustain on this earth. This university is totally discharge free, and this university is having ponds where the water is stored, that is recharging the groundwater, as well as this university is having agriculture field, livestock and other things that are making contribution towards sustainability. This is going to be a role model and example for other universities as well as institutions that can make contribution towards SDGs. So let us see what is special in this university. You can see the main gate of Central University of South Bihar. Here the preamble of Indian Constitution is embossed. Further you can see the instructions regarding the entry into the university campus. This is a drug-free campus, and the guard on the main gate will guide you to enter the campus. Here you can see eco-friendly campus, cycling as well as e-rickshaw, and this is the stupa, signature structure of the university. Here is the side view of administrative building, a very beautiful building. As I told you earlier, the university is having its agriculture farm, starting with the cow shed. दो 2023 से ही चल रही है, गौशाला है। और ये देखिए नेपियर घास है। यह भी यहाँ के लोगों के लिए एग्जाम्पल है। एक बार लगाइए तो 10 साल तक काटिए। तो जो हरा चारे को लेकर के एक समस्या रहती है, खास करके इस दक्षिण बिहार में जो सेमी एरिड जोन है, तो इस नेपियर के माध्यम से उसकी कमी पूरी हो सकती है। हो गया। गौशाला बच्चों के शिक्षण के लिए, उनको प्रशिक्षण के लिए खोली गई है। साथ ही बाहर के लोग, अगल बगल के लोग भी आकर के देखें कि कैसे आदर्श गौशाला बनाई जा सकती है। उनके रहने का स्थान, उनके खाने का स्थान और उनके लिए चारे की व्यवस्था कैसे की जा सकती है। यह पूरा हमारा जो डेयरी सिस्टम, ये आत्मनिर्भर है। इनको चलाने के लिए कहीं बाहर से कोई भूसा या पुआल की जरूरत नहीं पड़ती है। यहीं का प्रोडक्ट से ये चल रहा है। तो अब ऐसा है कि मैक्सिमम हमारे 7 गायें इसमें दूध देने वाली हैं, तो इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारा, हमको लगता है 60 लीटर तक रहा है। The strawberry farming is another attraction of the agriculture farm. This is the winter variety of strawberry. Adjacent to this is zucchini. This is the exotic variety of vegetable and similar to Indian bottle gourd. ये जो दिख रहा है ना, हाँ, ये इसको गाय भी खाती हैं, धान की खेती के लिए भी काम आता है, बकरियां भी खाती हैं, मुर्गियां भी खाती हैं, बहुत प्रोटीनस है। ये बच्चे जिसे देखिए, ये बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनके बारे में लोगों की अभिरुचि नहीं पनप पा रही है, या करते हैं तो लोग बहुत परंपरागत तरीके से, लेकिन यह जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से कैसे गोटरी पालन, उसका एक उदाहरण है।
तो लड़का बीएससी एजी पाठ्यक्रम के तहत इसको पढ़ भी रहा है और प्रशिक्षित भी हो रहा है। स्टार्टअप भी इसके माध्यम से सीखने की संभावनाएं हैं और कम्युनिटी के लोग भी आकर के इस प्रयोग को देख रहे हैं और जा कर के अपने यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। Water preservation is one of the major steps taken by the university. This is one of the ponds of the university. केवल किताब में न पढ़े, किताब पढ़ करके न सीखे, प्रयोग करके सीखे, इसके लिए यह तालाब है। और ऐसे ऐसे हमारे विश्वविद्यालय में 10 तालाब हैं। Along with water preservation, these ponds are used for fish farming purpose. इन तालाबों का बहुआयामी उपयोग हो रहा है। सिंचाई भी होती है, इनके माध्यम से पक्षियों को जल भी मिला है पीने को, जानवरों को भी सिंचाई भी हो रही है और अंडरग्राउंड वाटर जो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जो आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा संकट है, तो उसका भी प्रबंधन हो रहा है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि एक शंका उत्पन्न ये हो गई है कि जो बाहर से आयातित मछलियों को पाल रहे हैं, उसके चलते देसी मछलियाँ समाप्त हो रही हैं, तो उनका भी अलग से एक ब्रीडिंग हो, उसके लिए बनाया गया है। इसमें 2 कुंतल लौकी हुई है, यानी 8,000 से 10,000 रुपये तक इसको। तो इस केवल 500 स्क्वायर फीट में 8-10 हज़ार रुपये हम लोग ले सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पुआल जलाई नहीं जाती है, यह पुआल खाद का काम कर रही है ना। और इस पुआल का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि जैसे धान की खेती शुरू हुई, यहाँ पर कुश बहुत होता था, वो कुछ बिल्कुल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। ये केवल प्रदर्शन के लिए है, क्योंकि ये प्रदर्शन के लिए है। आज जो पैदा हुआ वह किसानों के लिए सीड के रूप में भी, सर्टिफाइड सीड के रूप में दिया जाता है। तो ये हीट को ही बर्दाश्त करेगा और उत्पादकता अच्छी होगी और किसानों के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ताकि आगे चलकर किसान इसको अपने खेतों में प्रयोग कर सके। तो जो हमारे कृषि विभाग या कृषि संकाय की जो मंशा है वो पूरी हो जाएगी। एक बार लगा दीजिए तो 20 से 25 साल तक, और ऊपर ड्रैगन फ्रूट फलेगा और नीचे आप चाहें तो प्याज लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। तो ज़मीन का कैसे अनुकूलतम उपयोग हो, इसका यह उदाहरण है। Brimato plant, that is the plant of brinjal and tomato, are grown up together, and this is one of the unique experiments done in this agriculture farm. तो हम लोग वो दिन भी देखे हैं जब गाँव में खेती के प्रोडक्ट्स का प्रोसेसिंग ओखल, मूसल, जांत, चाकी के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी ने नहीं देखा। तो पहले के हमारे हेरिटेज को हमारे विद्यार्थी सीख सकें, जान सकें, उसके लिए एग्रो हेरिटेज की यहाँ पर स्थापना हो रही है। उस एग्रो हेरिटेज में चाकी, जांता, ओखल, मूसल, सिलबट्टा, ये सारी चीज़ें रखी जाएगी ताकि लोग अपनी विरासत का एहसास कर सकें। Agricultural land is sprawling across many acres inside the campus. This is the mustard field. You can see leguminous plants as well. The hostels are also in the frame.
ये क्रीपर के सहारे जो है, क्रीपर्स है टमाटर की, ये जो है इसके सहारे चढ़ेगा और ऊपर तक जा कर के फलेगा। देखिए फल आना शुरू हो गया है। तो ये फल जो है ये लंबे समय तक ये फल देगा, क्योंकि ये नियंत्रित वातावरण में है। इस टोमेटो में दो तरह से टोमेटोज़ की भी बारे में बच्चों को हम लोग बताते हैं कि इनडिटर्मिनेट टोमेटो, एक डिटर्मिनेट टोमेटो। डिटर्मिनेट टोमेटो हम फील्ड में लगाते हैं जिसकी हाइट कम होती है, और इनडिटर्मिनेट टोमेटो की जो इन्फिनिटी होती है आगे ऊपर तक ये जाती है। तो बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि ऑफ सीज़न में हम टमाटर की बहुत ज़्यादा मांग होती है, तो ऑफ सीज़न में हम प्रोडक्शन कैसे करें और जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में कैसे इसको हम जोड़ें। तो ऑफ सीज़न के लिए रेट भी फार्मर्स को अच्छा मिलेगा और जो है प्रोडक्शन भी अच्छा था, और इसकी क्वालिटी इन कंपेयर टू जो बाहर होता है उसके अपेक्षा जो है इसमें ज़्यादा उपज होती है। तो ये पर यूनिट एरिया हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। यह खेती ऐसी है मशरूम की कि जिसके पास घर पर कोई एक स्पेयर कमरा है उसमें भी लेयर बना करके वो कर सकता है ना, और अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ उसकी मार्केटिंग भी कर सकता है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र है उसको पैदा करना सीखे कि कैसे मशरूम पैदा की जाती है, किन परिस्थितियों में पैदा की जाती है, कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, कटिंग होती है और कैसे उसकी मार्केटिंग। तो यहाँ सीख करके लड़का किसी रोजगार का मोहताज नहीं होगा। 3.5 कुंटल इसमें में ही मिर्चा पैदा हुआ है। तो ये कृषि कैसे इकोनॉमिकली वायबल होगी वह इसका एक एग्जाम्पल है, और वही स्थिति उस बैगन के साथ है। तो यह बहुत ही लाभप्रद और ये पूरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। So you have seen Central University of South Bihar is making its contribution towards SDGs, and it is evolving as a self-sustainable university. Whether it is goatry or dairy farming, honeybee keeping, that is called as apiculture, the university is doing so many things to preserve the environment and utilizing its own resources as much as possible. Further, the lush green wet field is adding another visual delight for the visitors as well as the university fraternity, and it is like an oasis on the barren land of Gaya. I am saying you adieu with the message of Honorable Vice Chancellor. यही साधना भारत भव्य बनाना है। तो भारत को यदि भव्य बनाना है तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो विश्वविद्यालय को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। तो इसी उद्देश्य को लेकर के यह सारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के लिए और देश के लिए समर्पित है।